Good morning everyone. How are you doing? I hope everybody is doing well at their places. Okay, so today we will be starting with our new topic, which is median. We have done mean, we have done mode. Now today we will start with median. Okay. What is median? Median is that value of data, central value of the data, which divides data into two equal parts, right? Okay. For example, if I talk about, let's just say 2, 3, 5, 7, 8, 9, suppose. So here central value will be 5. So 5 will be the median, right? These things we have already studied in junior classes. If I talk about let's say 2, 3, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 observations are there. Then we cannot find one median. Just look here. These are, we cannot find one central value. So here we have two central values. So we will take the average of 5 and 7. I'll just let you know what I'm doing. This is just, I'm talking about the things which we have already studied in junior classes. Okay. So median is that value of data which divides the data into two. Central value of the data is what we call median. Okay. So 5 plus 7 is what? Suppose it's 12. So 12 upon 2, median will be 6. So it's like when number of observations are even, जब number of observations even होती है, for let's say छोटा सा example ले ली 1, 3, 5, 2, 4, 8, 2. Let's say. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे odd है. तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वी आर गोइंग टू अरेंज द डेटा, अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले क्या करते हैं? इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सो सपोज मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे n 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 7. तो मीडियन क्या होगा? मीडियन विल बी n plus 1 upon 2th ऑब्जर्वेशन. यानी n यहाँ पे 7 है, 7 plus 1 8, 8 upon 2 4. So fourth observation. After arranging the data into ascending or descending observation, descending order, fourth observation. Just look here 1 2 3 4. So हमारा median क्या हो जाएगा? 3. ये देखो, ये बिल्कुल बीच में आ रहा है. Okay, so this is the middle value, central value of the data which divides the data into two equal parts is what we call median, है ना. तो जब odd number of observations are there, then we find median by n plus 1 upon 2th observation. लेकिन अगर मैं इसी को even कर देती हूँ, let's say I am taking one more number. अगर मैं यहाँ पे 9 ले लेती हूँ, है ना, ascending order में मैंने arrange कर रखा है. आपको whenever you find the median, you have to arrange the data in ascending or descending order. उसके बाद अगर odd है, then n plus 1 upon 2th observation. अब इवन है, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8. n इज व्हाट? 8. तो ऑब्वियसली इवन है. तो इसका मतलब क्या है? इवन है तो दो सेंट्रल वैल्यूज होंगी, उनका एवरेज निकालना है. तो आप कैसे निकालोगे? यू विल फाइंड एवरेज ऑफ n अपॉन 2 एंड उसके जस्ट बराबर n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन. यानी कि जस्ट लुक हियर, यहाँ पे n 8 है, 8 अपॉन 2 इज 4, n अपॉन 2 प्लस 1, ये नहीं है. दिस इज नॉट लाइक दिस. n अपॉन 2 प्लस 1, जो भी n अपॉन 2 की वैल्यू आई है उससे नेक्स्ट वैल्यू 4 के बाद फिर. सो मीडियन विल बी क्या होगा? एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म. Average of fourth and fifth term. Just look here 1 2 3 fourth and fifth term. तो देखो हमारी fourth term कौन सी है? 3. fifth term हमारी कौन सी है? 4. इसका एवरेज मतलब 3 plus 4 divided by 2. So 7 upon 2 which is 3.5. Understood? So like this we find out the median for discrete data. लेकिन हम तो यू मस्ट हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द डेटा जो हमको दिया हुआ है अभी टेक्स्ट स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में, इट इज ग्रुप डेटा. हमने मीन भी ग्रुप डेटा का निकाला, मोड भी ग्रुप डेटा का निकाला. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड
mean of group data, right? So what are we going to do? I'm just telling you that, है ना? So just have a look here. All right. So I'm going to talk about group data, right? I'm just taking example of your book exercise. Question I'm taking from your book exercise. Let's say exercise 14.3, question number 1 I'm taking, so that I'll be able to explain you the topic well. Okay? So just have a look here. And we have a data 4, 5, this is 13, then we have 20, then we have 14, 8 and 4. देखो हमें ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना है। जब भी हम ग्रुप डेटा का मीडियन निकालेंगे, सबसे पहले दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्लास इंटरवल। ओके, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will find out cumulative frequency। हम क्या निकालेंगे? cumulative frequency निकालेंगे। देखो cumulative frequency is the same thing which you have studied in 9th standard, है ना? अभी बताती हूँ क्या मतलब है। cumulative frequency दो तरह की होती है, less than and more than type cumulative frequency distribution। क्या होता है? I'm just telling you। जैसे if I talk about less than type cumulative frequency distribution, क्या होगा उसमें? What I'm going to do, मैं लेस देन 85 जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको साथ लूंगी, है ना? तो लेस देन 85 इस क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो लेस देन 85 में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। क्यूमुलेटिव टुगेदर, अभी मैंने क्या किया? लेस देन 105 अगर मुझे लेनी है तो क्या होगी? ये भी लेस देन 105 है, ये वाला ग्रुप भी लेस देन 105 होगा, है ना? सो मैं क्या लूंगी? 4 + 5 9। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब दो तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप में हम क्या लेंगे? जो अपर लिमिट्स हैं, जैसे यहाँ पे डेटा जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, मतलब जो भी हमें डेटा दिया हुआ है, इट इज लाइन बिटवीन 65 to 85, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। 85 to 105 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, लाइक दैट, है ना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम एक साथ ले लेंगे, लेस देन 85 जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनको साथ में लेंगे, फिर लेस देन 105 जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनको साथ लेंगे, फिर लेस देन 125 जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है। ऑफ कोर्स ये बात है, लेस देन 125, ये सब लेस देन 125 तो ये सब ऐड हो जाएगा, है ना? इसका मतलब समझो, इसको निकालना बहुत इजी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकाल रही हूँ, कैसे निकालते हैं? ये 4 रहेगा, अब मैं 105 की जब बात करूँगी लेस देन 105, तो ये दोनों लेस देन 105 होगी। देखो ये भी 65 to 85 में लेस देन 105 है, एंड 85 to 105 में भी हम लेस देन 105 वाली वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज 4 + 5 9। देखो that's how I am finding out the cumulative frequency। 4 + 5 9, then 9 + 13 22, then 22 + 20 42, then 42 + 14 56, then 56 + 8 64, and then 64 + 4 68। Like this we find out the cumulative frequency। ये हम कौन सी? अभी मीडियन के लिए आई एम गोइंग टू यूज ओनली लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिर्फ मैं वो आपको अभी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट। ओके, सो नाउ जस्ट हैव अ लुक हियर। In this, while finding out the median, we are going to use only less than type cumulative frequency. Okay, all right. So just have a look here. Again, I'm just explaining you how to find out the cumulative frequency. Look here. वापस से बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है? Again, this is 4, then 4 + 5 9. Understood? मैंने ये पहले चीज यही लिखी थी, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। 4, then 4 + 5 9, then 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 will be 56, 56 + 8 will be what? 56 + 8 is 64, and 64 + 4 68। देखो मैंने बोला लेस देन टाइप निकाल दूंगी ना,
सो लेस देन 205 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये लेस देन 205 है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी डेटा लेस देन 205 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 68। ये सब क्यूमुलेटिव, ये जो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है दे ऑल आर लेस देन, दे आर फॉर द डेटा लेस देन 205, यानी इसका सम भी इसके इक्वल आएगा। 4 + 5 9, 9 + 13 will be 22, right? 22 + 20 42 and 4 46, 56 56 and 4 60 and 60। लुक हियर, तो यानी आपकी फ्रीक्वेंसीज का सम जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल आएगा। अब अगर हम बात करें मीडियन की, आई होप एवरीबॉडी इज वेरी मच क्लियर कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। 4 पहला सेम रहेगा, 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 और 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। अब हाउ डू यू फाइंड मीडियन? मीडियन is equals to L plus n/2 minus CF/F into H। देखो सबसे पहले देखो हमने जब मोड कैलकुलेट किया था तो हम मॉडल क्लास निकाल रहे थे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? मीडियन क्लास। व्हाट आर वी गोइंग टू फाइंड? वी आर गोइंग टू फाइंड मीडियन क्लास। ऑलराइट, सो जस्ट हैव अ लुक हियर, मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले व्हाट आर यू गोइंग टू डू? You will find out n/2। n का मतलब सम सिग्मा fi, फ्रीक्वेंसीज के सम को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं n, तो n क्या हो गया हमारा 68। सो n/2 इज व्हाट? 68/2 विच इज 34, है ना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 34। आपको पहला स्टेप क्या है? आप जो फ्रीक्वेंसीज का सम है उसको 2 से डिवाइड करोगे, जिसको हम बोलते हैं n/2। n स्टैंड्स फॉर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा fi upon 2 मतलब 34। Now you will look for the cumulative frequency just greater than 34। देखो cumulative frequency just greater than 34, 34 से just बड़ी क्या ये है? नहीं है। cumulative frequency ये है? नहीं। ये है? नहीं। yes ये है। this is cumulative frequency just greater than 34, so this is our median class। okay, ये हमारी क्या होगी? median class। अब values पुट करो। L stands for lower limit of the median class। Then n/2 फ्रीक्वेंसीज के सम को 2 से डिवाइड किया, कितना मिला? 34। अब ये ध्यान रखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं लेते। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो हमारी है उसके जस्ट ऊपर वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर हम ये 42 नहीं लेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाली विच इज 22। और फ्रीक्वेंसी हम मीडियन क्लास की लेंगे, वो कितनी है? 20। और h कितना है हमारा? जस्ट लुक है, h का मतलब मैंने पहले भी बताया था। अभी तुम स्टैट्स में जहां पर भी h यूज करोगे इट्स फॉर द विड्थ ऑफ द क्लास। तो विड्थ ऑफ द क्लास जस्ट लुक है 145 minus 125 20, so this is 20, so this is going to be 125। देखो ये 20 से 20 कैंसिल हुआ, 34 minus 22 will be what? 12, right? 4 minus 2 2, 3 minus 2 and 20 से 20 कैंसिल हो गया, so you will get 5 plus 2 7 137। अभी देखो, मैंने तुमको बोला था mode will lie in model class, similarly median will always lie between in median class। Again I am telling you it's very much easy। आपको सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ऑल्दो आप किसी भी मोर देन और लेस देन दोनों यूज कर सकते हो, पर अभी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू लेस देन टाइप। अभी हम व्हेन वी विल स्टडी ओजाइव्स, तो मैं मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। क्यूमुलेटिव का मतलब टुगेदर वी हैव टेकन द वैल्यूज, मतलब जैसे लेस देन 85 को एक साथ लिख दिया, फिर लेस देन 105 है उसको एक साथ लिख दिया, तो लेस देन 105 ये दोनों वैल्यूज होंगी विच इज 4 + 5 9। इट्स लाइक दिस ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? 4 पहली सेम रहेगी क्योंकि लेस देन 85 कितनी वैल्यूज है? 4 ही है। 4 + 5 9, 9 आया, 9 में 13 ऐड किया 22, 22 and 20 42, 42 and 14 56, 56 and 8 64 लाइक दिस। ये जो होता है दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले n का मतलब यहाँ पे है फ्रीक्वेंसीज के सम से। n/2 आप करोगे 68/2 which is 34, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, you just need to look for the cumulative frequency which is just greater than 34। तो 34 से just greater cumulative frequency, not frequency। क्या ये है? नहीं, ये है, ये है, ये है। so this is
इज आवर मीडियन क्लास, ठीक है, यानी हमारा मीडियन 125 टू 145 के बीच में ही लाई करेगा ना। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L की जगह लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, प्लस की जगह प्लस n अपॉन 2 विच इज 34 माइनस सी एफ ये नहीं होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला लोगे, एंड फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की, बाकी सब आप मीडियन क्लास का लोगे, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू नीड टू टेक ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये हमारी 22 है, वी विल टेक इट 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी विच इज 20 इंटू एच, और फिर हमने इसको कैलकुलेट किया। हम चेक कर सकते हैं कि मीडियन विल लाई बिटवीन 125 एंड 145. I hope everybody is very much clear with this, right? Okay, so now moving on to next part. All right, next question we have question number 2. I am just explaining exercise 14.3 question number 2. Just have a look here. So this is our second question. Here we have this class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, then we have 40 to 50, and then 50 to 60. It's a good question class, okay? 5, x, 20, 15, then we have y, 5, and sum of frequencies is given to us. Here we have got the value of median also, okay? Median is given to us what? Median is 28.5, and you just need to find the value of x and y. So I told you whenever we are going to talk about median, we will just find out the cumulative frequency first, है ना? Less than type I am just using, okay? So CF I am finding, this is frequency, this is class interval. Now this is 5, then 5 plus x, 5 plus x, 5 plus x plus 20. देखो बच्चे 5 plus x plus 20 like terms can only be added or subtracted. 20 plus 5 25, 25 plus x लिखो, okay. Now 25 plus x, then 25 plus x plus 15, यानी इसमें 15 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 30, 40, 40 plus x, then 40 plus x plus y, and then we have 40 plus x plus y में ये 5 ऐड करेंगे which is 45 plus x. देखो कभी भी रूल्स नहीं चेंज होते हैं, आप जैसे मीडियन निकालते थे वही करा है मैंने, कुछ नया नहीं किया है. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. जब कुछ नया आ जाता है इट्स नॉट लाइक दैट, नया टॉपिक नहीं है कि वही, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू नो मीडियन, और जैसे हम मीडियन निकालते थे वही मेथड यूज़ कर रहे हैं. क्या कर रहे थे हम मीडियन में, जस्ट क्या हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे. यहाँ पे 5 है, then 5 plus x, then 5 plus x में 20 ऐड किया, 25 plus x हो गया, 25 plus x में 15 ऐड किया, तो 25 plus 15 40, 40 plus x हो गया. देखो 25 plus x में 15 ऐड किया, तो ये लाइक टर्म से इसलिए ये 40 plus x हो गया. क्लियर? Then we have 40 plus x plus y, and then 40 में 5 ऐड किया, तो 45 plus x plus y. अब देखो दो वेरिएबल यू नीड टू फाइंड, two variables you need to find, it means you need two equations. Remember, जितने वेरिएबल अगर आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, it means you need three equation. यहाँ पे you need to find the x value of x and y. It means only two equations are sufficient to find out the values of x and y. So मैंने सबसे पहली इक्वेशन यहीं से मिल रही है. मैंने बोला था ये जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. पहली इक्वेशन हमको मिल गई क्लास. जस्ट लुक हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ. 45 हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 45 plus x plus y which will be equals to 60. So x plus y is equals to 60 minus 45. Then x plus y is equals to 60 minus 45 is what? 50. एक इक्वेशन मिली. अभी दूसरी इक्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि दो वेरिएबल है. अब दूसरी इक्वेशन मिलेगी हमें मीडियन से. ऑल राइट, अब मीडियन हमको अगर निकालना होता तो हम इस फॉर्मूले से निकालते. L plus n upon 2 minus CF upon F into H. हाँ, ये मीडियन तो हमको ऑलरेडी पता है which is 28.5. But there is a problem. जब पहले क्वेश्चन हम करते थे तो हम लोग we were searching कि सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते थे. n upon 2 करते हैं. चलो n upon 2 करते हैं. 60 upon 2 which is 30. देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी which is just greater than 30 क्या ये है?
क्या ये है पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। क्या ये है, वी कैन नॉट डिसाइड कि विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 30, हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। जस्ट लुक हियर, अगर x की वैल्यू सपोज लेट्स से 11 हुई तो 11 + 5 तो 16 हो जाएगा, और अगर सपोज 30 हुई तो 30 + 5 35। तो वी कैन नॉट डिसाइड कि x की क्या वैल्यू है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन 30 और नॉट। तो कैसे मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, मैंने तुमको बोला था मीडियन विल ऑलवेज लाई बिटवीन मीडियन क्लास ऑलवेज लाई इन मीडियन क्लास। 28.5 कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 20 एंड 30। तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास, दिस इज गोइंग टू बी अ मीडियन क्लास, क्योंकि our median 28.5 lies between 20 and 30 बस। now it's very much easy how L we will take 20 n upon 2 which is 60 upon 2 30 minus CF। okay cumulative frequency ये लेंगे या ऊपर वाली लेंगे, of course cumulative frequency की ऊपर वाली क्लास की लेते हैं minus CF। now most of the students make mistake like this, अगर CF माइनस करो इसका मतलब आप ये कर रहे हो, नो इट्स रॉन्ग। जस्ट लुक हियर, आपको CF माइनस करना है, सो n upon 2 is 30 माइनस CF, हमारे CF पूरा 5 + x है, अकेला 5 नहीं है कि अगर आप लोग ऐसे लिखते हो, दिस इज रॉन्ग। आपने सिर्फ 5 को सब्ट्रैक्ट किया है, 5 is not CF, 5 + x is CF, तो पूरा 5 + x सब्ट्रैक्ट होगा, यानी आप ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगाओगे अपॉन n फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। f क्या होता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास व्हिच इज 20 एंड देन इनटू h क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास व्हिच इज 10। ओके, नाउ वी हैव गॉट टू इक्वेशन, जस्ट लुक हियर हाउ, ये 28.5 है, ये प्लस का 20 है, उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा, फाइन। ये 10 * 2 = 20 है ना। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखो ऊपर ब्रैकेट में ये प्लस का 20 था, इधर लेके आई 28.5 - 20, यहाँ हो जाएगा मेरा 30 - 5 - x। देखो ब्रैकेट ओपन किया, प्लस का 5 था, माइनस का 5 हो गया, ये भी प्लस का x था, माइनस का x हो गया। सो शुड आई राइट 25 - x, सो दिस इज 25 - x, और 10 * 2 = 20 कट चुका है, दिस इज द डिनोमिनेटर। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, देखो ये प्लस का 20 था, इधर माइनस का हुआ, इक्वल टू की जगह इक्वल टू 30 - 5 - x, so 25 - x upon 2। now just look here, 28.5 - 20 will be 8.5 is equals to 25 - x upon 2। ये 2 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, is equals to 25 - x, है ना। तो this is 8.5 into 2 is what, 17। so we will get 25 - x is equals to 17, है ना। तो x की वैल्यू we need to find, so just look here -x, ये प्लस का 25 है, उधर जाके माइनस का 25 होगा, फाइन, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 25। so we will get what, we will get -x is equals to 17 - 25 is -8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। ये तो x की वैल्यू मिली, y की कैसे निकालेंगे, x + y is 15, हमारे पास इक्वेशन है, x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सब्स्टिट्यूशन मेथड, x is 8, इसकी जगह 8 रखा, प्लस y is equals to 15, so y is 15 - 8 which is 7, right। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको मीडियन निकालना आना चाहिए, आप यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन। ये दिया हुआ था, सबसे पहले मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वो ही हमने निकाली। 5 फर्स्ट विल रिमेन सेम, 5 + x, ये मिला, उसमें 28 किया, 25 + x, उसमें 15 ऐड किया, 40 + x, उसमें y ऐड किया, 40 + x + y, उसी में ये ऐड किया। अब we have two variables, it means we need two equations, x and y we need to find, it means we need two equations। so हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, हमको याद है कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सो 45 + x + y = 60, पहली इक्वेशन मिली यहाँ से। सेकेंड इक्वेशन, हमको मीडियन पता है, मीडियन इज 28.5 = 12 + n upon 2 - CF upon f into h। सेकेंड प्रॉब्लम हमको आई, हाउ टू फाइंड द मीडियन क्लास, क्योंकि हम CF मीडियन क्लास के ऊपर वाली कर लेते हैं। भाई 60 upon 2 आप करते हो, 30 आपको नहीं पता कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 होगी,
ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, you never know, right? So just rate a frequency we want. तो हमें मीडियन क्लास ढूंढना था, हमने बोला था मीडियन ऑलवेज लाइज इन मीडियन क्लास. 28.5 कौन सी क्लास में लाई करेगा? बिटवीन 20 and 30. So we will take this as a median class. बस उसके बाद हमने फॉर्मूले में पुट किया L की जगह 20 क्योंकि मीडियन क्लास प्लस n/2 60/2 30 माइनस CF ये वाली लेते हैं ऊपर वाली क्लास की which is 5 plus x. आपको सब्ट्रैक्ट करना है पूरे 5 plus x को इसके ब्रैकेट में लिया है. प्लीज टेक केयर स्टूडेंट्स, मेक दिस मिस्टेक. 10 2 से 20, नाउ दिस इज 20. ये प्लस का 20 था, उधर गया माइनस का हो गया. यहाँ पे देखो 30 minus 5 is 25 माइनस x क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 25 minus x अपॉन 2. ये 10 2 से 20 कैंसिल किया. अभी दिस इज 8.5 तो 25 minus x अपॉन 2 ये 2 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में गया. सो यू विल गेट 17 is equals to 25 minus x. हाँ 70 is equals to 25 minus x और 25 minus x is equals to 17 minus x. ये प्लस का 25 उधर गया माइनस का हुआ which is minus 8 तो माइनस माइनस कैंसिल. यू विल गेट x is equals to 8. y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमने we have calculated, right? So that's how we will find median. Okay, now question number 3. It's very good question. देखो in question number, although I'm going to discuss this question in our next video, but still before I'll just explain this question in next video, I want all of you to try question number 3. Just look here. In question number 3 we have age like below 20, below 25, below 30. Do you think it's this is given to you frequency? This is below 20 we have 2, below 25 we have taken together 6, below 30 we have taken together 24. तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमको क्या गिवन है? ये हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, राइट? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत पड़ती है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू draw ogives in our next video. Okay, so thank you so much. Have a good day.